Hello dear aspirants and welcome to EduTap. So guys, in this series we are continuing our lectures for your QRE 360 part, and now I wanted to start something in the second vertical of your syllabus, which is your vocabulary part. So today, for the vocabulary build up and to understand what kind of questions we face on the basis of vocabulary in the exam, we'll be covering a very frequently asked question in the exam, which is cloze test. So I'll explain to you what cloze test is, how do we how do we tackle cloze test, and then how do we solve using the elimination method. How do we solve cloze test, not just on the basis of vocabulary, but also by using your your logical sense, I mean your basic logic, and as well as your grammatical concepts here. So don't forget to like the session and don't forget to subscribe to the channel if you're here for the first time. Right, so let's begin guys, but before we go any further, I would like to inform you about our RBI grade A and grade B courses. Right, so this is going to help you in your preparation and in your journey ahead. So what you have to do is, you can also check it out in the link of the description of the video, but the simplest way is, guys, visit your browser and in your browser just type edutap.in. If you just type edutap.in on your browser, you will land on our homepage, and this is our motto for you. Every aspirant needs not a course but a mentor. So we are offering you a mentorship program. Now on the top of the screen you will see different tabs here: exams, courses, PYQs, current affairs, etc. Now under courses, the first tab is RBI grade B courses. When you click on that, you will see our courses based on RBI grade B. So first is your RBI grade B and Bank Mahapak exam. Now this is for aspirants who are preparing for RBI along with other banking exams like IBPS, SBI or RRB. Now second is your starter pack. This is absolutely free. You can you can choose this and you can see the quality of the content that we are providing you in our courses. So this is a starter pack which is absolutely free. So you can try our quality through this pack. This is a test series for RBI grade A, grade B, but these are the courses that I'm referring to. These are the the best courses. Now guys, if you are already prepared for your phase 1, you can choose silver course, which only helps you in phase 2 and interview. But if you are starting with your preparation, this is a one-stop solution for your exam, which is gold course. Now in the gold course, this is for phase 1 as well as phase 2 plus interview part. Now you will have live classes as well as concept recorded classes available to you in the course, concept notes for every chapter, summary sheets, mock tests, interview sessions, full length test, sectional test. Along with all that, you'll have mentorship program and a guidance, right, where you can ask your doubt and queries to your mentors and you can get in touch with them absolutely when you need. So that is the best part about this course. That is the USP of this course: the guidance, the mentorship, and the doubt and query resolution. So this we offer you very, in a very careful manner, so that we are able to handhold you throughout the journey. So we are offering flat 70% off on this discount on this course, guys, and the coupon code is capital EduTap. Now you can choose which course you want and you can enroll yourself in that. So this is how you can join us in our courses, and we are offering flat 70% off. Now there might not be a better opportunity to avail this course, so this is only available for the next 2 days. I think it will be available just over the weekend, and the prices will be renewed, revised from the coming Monday. So come join us and start your preparation. And also guys, if you want to download the previous year questions of RBI, the link is given in the description of the video. Go check out the link and you can download the previous year questions for absolutely free. So go check it out and start your preparation. Alright guys, so what is a cloze test? Cloze test hota kya hai guys? Let's understand that, and then we will move towards towards understanding how to tackle cloze test. So what is a cloze test? Now in a cloze test, they take a short passage. It could be from an editorial, it could be from an article or periodical, it could be from a magazine. So what they do is they take a passage which is about 100 to 120 words long, and in the passage they give you 5 words as blank. So normally 5, but there can be 4, there can be 6 as well, but usually there are 5. So they'll give you 5 blanks, and for every blank they will give you 5 options: A, B. They'll give you some words, and you will be asked to choose
which word would properly fit best in the blank. So this is called a close test. Close test होता क्या है guys? आपको एक पैसेज देते हैं वो, और उस पैसेज में 5 वर्ड्स ब्लैंक होते हैं ना। उन ब्लैंक वर्ड्स में आपको जो सही वर्ड है चॉइसेस में से वो आपको वहां पे फिल करना होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें गलती कहाँ होती है सर? इज इट इजी? यहाँ पे सिर्फ वोकैबुलरी का रोल होता है क्या? नो, it isn't. Guys, I'll give you an example and then I'll start with the topic. For example, guys, let's say a passage starts like this. India is a dash country and that makes it crucial for the global economy. Right? Let's say this was the first sentence of the passage. This was the first blank, and let's say they have given you 5 options for this. First option is India is a India is a struggling country. Second option is India is a developing country. Third is India is an amazing country. Fourth is India is a backward country. And let's say they've given you 5th option as India is a third world country. Yes guys, which blank do you think will probably fit the best in this context? Yes guys, so India is your options are struggling country, developing country, amazing country, backward country, or a third world country. What do you say? Please answer me in the chat box guys. 99% of you will tell me, sir, I feel developing country is the right choice here, right? आप सबको क्या लग रहा है गाइस कि डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे ठीक हो रहा है ना? बट यही सबसे बड़ी गलती होती है गाइस, ठीक है। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। डू नॉट प्रिज्यूम समथिंग विदाउट नोइंग द होल कॉन्टेक्स्ट। गाइस, आपको कैसे पता है कि यहाँ पे डेवलपिंग ठीक है? विदाउट लुकिंग एट द फर्दर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कि आगे पैसेज में क्या बात हुई है, वो जाने बिना आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे डेवलपिंग ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात क्या है? सर यहाँ पे स्ट्रगलिंग भी तो हो सकता था, या अमेजिंग भी तो, या थर्ड वर्ल्ड भी तो हो सकता था, राइट? व्हाई नॉट व्हाई ओनली डेवलपिंग? अब आपको यही चीज समझनी है गाइस, हमेशा ना डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये जो हम करते हैं ना, आप सबने पता है क्या ट्रिक? मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो आप सब यूज करते हैं। मनी मन बोल के, मतलब बोल के मनी मन में बोल के देखते हैं, इंडिया इज अ स्ट्रगलिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अमेजिंग कंट्री, इंडिया इज बैकवर्ड कंट्री, इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और आप अपने ब्रेन से पूछते हो कि बताओ किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सबसे ज्यादा, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा वर्ड आपने कौन सा सुना है, और सबसे ज्यादा वो आपको कौन सा वर्ड बताता है? डेवलपिंग। और आप उसी को चूज कर लेते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। गाइज, ये आज के बाद नहीं करना है आपको, क्योंकि यहीं पे वो गलतियां करवाएगा प्रेजुडिस की वजह से। और विदाउट लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट यू कैन नॉट डिसाइड विच वर्ड फिट्स द बेस्ट हेयर, ठीक है। तो आपको यही गलती नहीं करनी है। अब ये जो होता है ना मनी मन बोल के देखने वाला, ये गलत होता है क्या? नहीं, ये ठीक होता है, लेकिन पहले आपको अपने पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा एक बार। सो अब मैं आपको समझाता हूँ कि पैसेज, ये क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या होती हैं। गाइस, याद रखना, आपको पैसेज को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा उसके कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस, कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, उसकी टोन समझने के लिए, और उसका टॉपिक ग्रास्प करने के लिए। तो फर्स्ट रीडिंग होगी आपकी किस लिए? टू अंडरस्टैंड दिस। और फिर सेकंड रीड जो होगा आपका, सेकंड रीडिंग जो आप करोगे वो होगा आपका चॉइसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, और उसके बाद आपको अपने बाय विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, देन यू हैव टू रीच द फाइनल चॉइस, ठीक है। ये इसका तरीका होता है बेसिकली। सो व्हाट यू डू इज यू रीड द पैसेज केयरफुली, आइडेंटिफाई द टोन एंड द सेंटेंस पैटर्न। एट टोन मतलब पैसेज पॉजिटिव बात कर रहा है या नेगेटिव बात कर रहा है, आगे चल के उसने कैसी टोन बताई है, क्या बोला है। इज इट पॉजिटिव, इज इट क्रिटिकल, इज इट अप्रिशिएटिव, इज इट जस्ट इंफॉर्मेटिव? अलग अलग तरह की टोन होती हैं गाइज, ठीक है। ये हम सीखेंगे आगे चल के, बट कोर्सेज में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया, कोर्स की जो वीडियोज है, कि आपको क्या 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 टोन है जो पता होनी चाहिए। और सेंटेंस पैटर्न मतलब सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी चॉइसेस बनाते हो। देन सेलेक्ट द वर्ड टाइप। ये हम नहीं करते गाइज। किसी ने किया गाइज? जो मैं अभी आपको बता रहा था, इंडिया इज अ डैश कंट्री, क्या आपने ग्रामर यूज की यहाँ पे?
नहीं। आप क्या किसी ने सोचा इंडिया यहाँ पे नाउन है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अ यहाँ पे आर्टिकल है और इस ब्लैंक के बाद कंट्री आ रहा है विच इज अगेन अ नाउन, और नाउन से पहले और आर्टिकल के बीच में सिर्फ क्या वर्ड आता है, एडजेक्टिव आता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि ये एडजेक्टिव होना चाहिए तो ऑप्शन में देखो कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर देखो ग्रामर के बेसिस पे जब यहाँ पे अ था तो क्या हम अमेजिंग के लिए अ लगा सकते हैं? नहीं, अमेजिंग तो वॉवल से शुरू हो रहा है, ये ऐसे एलिमिनेट होते हैं। इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो सकता है, स्ट्रगलिंग कंट्री हो सकता है, बट इट डजंट मेक प्रॉपर सेंस हेयर, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे, राइट। फिर जब आपके पास जो चॉइसेस बचती हैं फिर उनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए। सो सेलेक्ट द वर्ड टाइप, ग्रामर का यूज करो, ठीक है, एंड एलिमिनेट द ऑब्वियस ऑप्शंस। ऑप्शंस को किस बेसिस पे एलिमिनेट करना है? पहला बेसिस है एलिमिनेशन का आपका कॉन्टेक्स्ट, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड ठीक है। सेकंड आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है आपका लॉजिक, क्या ये लॉजिक बना रहे हैं यहाँ पे इस वर्ड को अगर मैं यूज करता हूँ तो। और थर्ड है आपकी चॉइस वो है ग्रामर, क्या ग्रामेटिकली ये यहाँ पे फिट बैठता है, मतलब वहाँ पे अगर एडजेक्टिव होना चाहिए तो क्या ये एडजेक्टिव है, अगर वहाँ पे प्रेपोजिशन या नाउन या वर्ब या एडवर्ब होना चाहिए क्या वो है। तो इन तीन टूल्स की हेल्प से आप क्या करते हो, अपने एलिमिनेशन यूज करते हो, एलिमिनेशन मेथड करते हो। दीज आर द थ्री टूल्स, कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक और ग्रामर। इनके बेसिस पे आप देखना गाइस 5 में से कम बोल रहा हूं मैं, आप 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे, और 3 एलिमिनेट करने के बाद आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे, जिनमें से आपको बस ये देखना होगा कि ये बेटर ऑप्शन है या ये बेटर ऑप्शन है, एंड वो आपको एक रीडिंग हैबिट, फिर जो लास्ट जो माइल है ना गाइस, जो लास्ट चॉइस है वो आपकी रीडिंग हैबिट बनाएगी आपकी। गाइस अगर आप डेली कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर कॉम्प्रिहेंशन, यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी। सो रीड समथिंग डेली। रीडिंग हैबिट मैंने डे 1 पे बोला था, इट्स अ मस्ट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड स्पेशली फॉर आरबीआई, क्योंकि यहाँ पे इतने इजी भी नहीं आते क्वेश्चन जितना आप सोच रहे हो कि सर ये तो कोई भी मतलब 12th पास कर लेगा ना। इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू हैव टू हैव अ कॉन्टिन्यूअस एंड साइमल्टेनियस रीडिंग हैबिट विद योर प्रिपरेशन, क्योंकि उसी से आपकी डेली जो वोकैबुलरी है वो इंप्रूव होती है। देन आफ्टर यू मेड ऑल द एलिमिनेशन एंड देन रीड आफ्टर फिलिंग द ऑप्शंस। ये जो होता है ना मन ही मन बोल के देखना, ये एंड में करना होता है। जब आपने सारे ऑप्शन फिल कर लिए फिर आप एक बार पूरा पढ़ के देखो और ऑप्शंस को मन ही मन बोल के देखो वो सही तरह से वहां फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड देन यू मेक श्योर कि वहां पे सही चॉइस है। और एक और चीज याद रखना गाइस, अवॉइड गेटिंग स्टक एनीवेयर व्हाइल रीडिंग द पैसेज। पढ़ते हुए कहीं रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, आपको दोबारा जब पढ़ोगे समझ आ जाएगा, तो टाइम खराब नहीं करना है। लेकिन ये भी एक चीज याद रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर 5 ब्लैंक दिए हैं तो आपको पांचों फिल करने कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपको मान लो एक ब्लैंक में कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी 4 आपके कंफर्म है, ठीक है, तो एक को आप छोड़ सकते हो, आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मान लो आपने चॉइस मतलब आपको 3 कंफर्म थे, 2 आपको श्योर नहीं थे, 3 आपके ठीक हो गए लेकिन 2 गलत भी हो गए, आपने टाइम भी उतना ही लगाया, आपने मार्क्स आए आपके 2.5, ठीक है, और टाइम लगा दिया आपने 5 मिनट, कोई फायदा नहीं है, वो इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने 4-5 मिनट लगाए और आपके 4 या 5 मार्क्स बने, दैट इज व्हाट आई कॉल अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इसको हमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें बेटर होते जाओगे। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अ फ्यू पैसेजेस टू यू एंड सी के हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है गाइस, पहले हमें पढ़ना है पूरा। देखिए गाइस, इन द 1930s एंड 1940s ज्योग्राफी वाज अ डैश सब्जेक्ट एट द स्कूल लेवल। ये मत सोचना कि एक ब्लैंक की वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि वहां पे क्या बात कर रहा है, एक वर्ड ना हो लेकिन उसके बिना भी आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो। अब देखना गाइस, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। वो क्या कह रहा है कि 1930s 40s में ज्योग्राफी स्कूल लेवल पे एक सब्जेक्ट हुआ करता था। कैसा सब्जेक्ट वो हमें देखना है। चिल्ड्रन स्पेंट आवर्स मेकिंग मैप्स एंड डैश अबाउट स्ट्रेंज प्लेसेस, पीपल्स एंड कस्टम्स। कि बच्चे घंटों मैप्स बनाते थे, नए नए प्लेसेस के बारे में, पीपल्स और कस्टम्स के बारे में सीखते थे। फिर उसने नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है, सरप्राइजिंगली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डैश ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कि सरप्राइजिंगली क्या पता चला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट 1945 के बाद बनाया। सोचो यार, इतने सालों से एजुकेशन चल रही है, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपको कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाए जा रहे थे। लेकिन ज्योग्राफी, सोचो जो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं जहाँ पे 2, ज्योग्राफी आज तक मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पढ़ाई गई 1945 से पहले। तो पहली बार 1945 के बाद हुआ सरप्राइजिंगली कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट अपने यूनिवर्सिटी में बनाया शायद। मैनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द यूएसए डैश सूट के
इसको देख हम देख बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने यूएसए में भी यही काम किया ना। फिर उसने लास्ट में एक बात बोली, ज्योग्राफी हैज बीन पेंटेड विद अ रेसिस्ट ब्रश। अगर आपको ये फ्रेज का, ये ईडियम का मतलब पता है तो ही आप ये सॉल्व कर पाओगे। टू बी पेंटेड विद द रेसिस्ट ब्रश का मतलब होता है पार्शियलिटी की गई है उसके साथ, ठीक है, इम्पार्शियल नहीं रहे, मतलब उसको सबके बाकी सब्जेक्ट के साथ इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी पेंटेड विद द रेसिस्ट ब्रश। तो ज्योग्राफी हैज बीन पेंटेड विद द रेसिस्ट ब्रश एंड नन वांट्स टू बी डैश। अब देखते हैं गाइस, इन द 1930s एंड 1940s, अब एक बार हमने पढ़ लिया कि पहले उसने ज्योग्राफी के बारे में कहा है कि ज्योग्राफी अच्छा सब्जेक्ट हुआ करता था, स्कूल में बच्चे बहुत पढ़ते थे इसको, लेकिन कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे था ही नहीं है। 1945 मतलब 1950s के आसपास मान लो कि यूनिवर्सिटी में आया, और फिर लोगों दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको यूज़ किया। और ज्योग्राफी को एंड में उसने क्या बोला कि बड़ा पार्शियलिटी हुई है इसके साथ, और कोई भी इसको इसके पीछे छुपना नहीं चाहता था। तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, अब देखना थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा है वो यूनिवर्सिटीज़ को कि जिन्होंने ज्योग्राफी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ये मुझे समझ आ रहा है। अब अपनी चॉइसेस बनाते हैं, देखना गाइस, और ग्रामर का और कॉन्टेक्स्ट का और लॉजिक का यूज करते हैं। इन द 1930s एंड 1940s ज्योग्राफी वाज अ डैश सब्जेक्ट, फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट, ओके, रिसोर्सफुल सब्जेक्ट, डिसेंट सब्जेक्ट। डिसेंट सब्जेक्ट तो कुछ नहीं होता यार, मैंने तो कभी नहीं सुना। लॉजिक ही नहीं, डिसेंट क्या होता है गाइस? ठीक ठाक, ठीक है। बोरिंग सब्जेक्ट, डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन स्पेंट आवर्स मेकिंग मैप्स इन स्ट्रेंज प्लेसेस, तो बोरिंग तो नहीं हो सकता। फेमस सब्जेक्ट, वाज ए फेमस सब्जेक्ट एट द स्कूल लेवल, तो देखो दो एलिमिनेट हो गए। रिसोर्सफुल सब्जेक्ट क्या होता है गाइस? रिसोर्सफुल जिसमें आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, डजंट मेक एनी सेंस हियर अगेन। या तो फुल फ्लेजेड होना चाहिए था या फेमस होना चाहिए था। यस गाइस, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? फेमस होता तो फिर वो यूनिवर्सिटीज में भी होता ना, लेकिन यहाँ पे क्या था कि स्कूल लेवल पे, वो देखो उसके कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि 1930s 40s में ज्योग्राफी स्कूल लेवल में फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट होता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पढ़ता था उसको। तो ये बात कहना चाह रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि कॉन्टेक्स्ट के लॉजिक के बेसिस पे ही हो गए तो एलिमिनेट, कि इन द 1930s 40s ज्योग्राफी वाज अ फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट एट द स्कूल लेवल। चिल्ड्रन स्पेंट आवर्स मेकिंग मैप्स एंड डैश अबाउट स्ट्रेंज प्लेसेस, एंड नॉलेज अबाउट स्ट्रेंज प्लेसेस नहीं, अबाउट हमेशा प्रेपोजिशन वर्ब के बाद आता है, तो यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट नहीं हो सकता। ड्राइंग्स अबाउट, इग्नोर्ड अबाउट, लर्नड अबाउट, फिगर्स अबाउट नहीं, ड्राइंग्स अबाउट नहीं, ये तीनों तो देखो गाइस, अब ये ग्रामर के बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते थे आप। चिल्ड्रन स्पेंट आवर्स मेकिंग मैप्स एंड नॉलेज अबाउट, ड्राइंग्स अबाउट या फिगर्स अबाउट स्ट्रेंज प्लेसेस, पीपल्स एंड कस्टम्स नहीं हो सकता। एंड इग्नोर्ड अबाउट या लर्नड अबाउट, आई थिंक द राइट आंसर इज, इग्नोर करते फिर वो घंटे क्यों बिताते, तो लर्नड अबाउट तो क्या होना चाहिए था, चिल्ड्रन स्पेंट आवर्स मेकिंग मैप्स एंड लर्नड अबाउट स्ट्रेंज प्लेसेस, पीपल्स एंड कस्टम्स, ये सही आंसर है। तो लर्न मतलब सीखते थे स्कूल लेवल पे। सरप्राइजिंगली, फिर उसने आगे बोला, सरप्राइजिंगली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डैश अ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, के सरप्राइजिंगली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डैश ज्योग्राफी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड, नर्चर्ड तो पाल पोस के बड़ा करना, इंटेंसिफाइड नहीं हो सकता, डेवलप्ड नहीं, अबॉलिश्ड भी नहीं हो सकता, डेवलप्ड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, नर्चर्ड या एस्टैब्लिश्ड। आई थिंक जो पहली बार बना रहे थे उसके लिए एस्टैब्लिश राइट इज द राइट वर्ड, कि उन्होंने पहली बार 1945 के बाद एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में बनाया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फिर उसने आगे क्या बोला, मेनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द यूएसए डैश सूट। अब देखना गाइस, अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो ही आप इसको फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज ये डे टू डे लाइफ में नहीं समझी जाती है चीज़, ठीक है। टू फॉलो सूट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है जो दूसरे ने किया वही आप कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड टू कॉपी समवन एल्स। सो टू कॉपी और टू रेप्लीकेट समवन को हम बोलते हैं टू फॉलो सूट। तो मेनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द यूएसए दिखवा रहे हैं, पहला ऑप्शन ही फॉलोड सूट, पढ़ते ही बता दिया मैंने कि ये आंसर होगा। ये रीडिंग हैबिट से होता है गाइस, आपने पढ़ा है डेली रेगुलरली तो आप इन चीज़ों को क्लिक कर पाओगे। क्लियर्ड सूट, प्रिपेयर्ड सूट, वोर सूट, सूट पहनेंगे यूनिवर्सिटी वाले। फाइल्ड सूट होता है, खैर फाइलिंग अ सूट मतलब किसी के खिलाफ केस करना, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं मेनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द यूएसए फॉलोड सूट, कि उन्होंने भी कॉपी किया। फिर कि हार्वर्ड में अगर उन्होंने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बना लिया, हमें बनाना चाहिए यार, नहीं तो फिर बाद में हमें कोसेंगे दुनिया कि ज्योग्राफी तुमने पढ़ाई ही नहीं कभी। और लास्ट में उसने क्या बोला, ज्योग्राफी हैज़ बीन पेंटेड विद अ रेसिस्ट ब्रश, कि इसको इसके साथ पार्शियलिटी हुई है। और क्यों यूनिवर्सिटीज़ में 1950s के बाद सारे दुनिया में लोग ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बना रहे थे, एंड नन वांट्स टू बी डैश, नन वांट्स टू बी लर्नड,
none wants to be seen as partial, none wants to be viewed as neglected, none wants to be prepared या none wants to be knowledgeable. नहीं guys, none wants to be prepared, knowledgeable और learned, इसका कोई सेंस नहीं है. None wants to be seen as partial या viewed as neglected. नहीं, कि कोई भी partial नहीं दिखना चाहता था, कि partiality करता हुआ नहीं दिखना चाहता था. तो सबने क्या किया, दूसरों की मतलब हार्वर्ड की देखम देख उन्होंने भी यूनिवर्सिटी में अपने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बनवा लिया. सो ज्योग्राफी हैज बीन पेंटेड विद अ रेसिस्ट ब्रश एंड नन वांट्स टू बी सीन एज पार्शियल. तो गाइज ये होता है गाइज क्लोज टेस्ट की एक ट्रिक, मतलब सेंस जो आपको रीडिंग हैबिट से आती है. आप सोच रहे हो सर आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे सॉल्व कर रहे हो उनको, या आपको कैसे पता है ये सब चीजें, पढ़ने की वजह से. इफ यू रीड समथिंग रेगुलरली on a frequent basis, you will be able to solve such passages, with complete accuracy. Next guys, देखते हैं गाइस, कंट्रीज आर एक बार ट्राई करते हैं और फिर एक मैं आपको होमवर्क के लिए देके जाऊंगा. यू शुड ट्राई इट एट योर होम. कंट्रीज आर डैश स्पीशीज टू मूव टू न्यू प्लेसेस बाय एनेबलिंग क्लाइमेट चेंज एंड एट द सेम टाइम मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू मूव अक्रॉस जियोलॉजिक टाइम. The Earth has apparently survived 5 mass extinctions and we are on the verge of the 6th. Now, we don't believe humanity can survive this wave unless we make rapid dash. There has been a rising tide of ignorance in the face of absolute facts in the global arena. The very signs that the world is dashed to reach the moon, Mars and beyond is now telling us that we might have to abandon ship if we keep polluting and dash the environment and have leaders who ignore science. वो बात कर रहा है कि हम दुनिया को खत्म होते नहीं देख सकते अगर हम ऐसे ही पोल्यूशन करते रहेंगे और साइंस को इग्नोर करते रहेंगे. तो large corporations, especially energy corporations, release carbon emissions into the atmosphere. Factors that have been influencing these emissions are very much within our control. And one of them is consumerism, जो हम कंज्यूम करते हैं, which dash climate change. The Food and Agriculture Organization of the UN in its report titled Livestock's Long Shadow argues that livestock क्या होता है, मवेशी जानवर, is a major stressor on many ecosystems and on the planet as a whole. It is one of the largest sources of greenhouse gases and these gases will only increase if we as consumers do not make conscious dash. ये 2019 का पैसेज देखते हैं. Countries are dash species to move to new places by enabling climate change. Countries are carrying, no. Abandoning, अकेला छोड़ रही हैं, no. Forcing, finding species to move या ensuring species. Forcing या ensuring हो सकता था, but I think forcing is the better word, कि वो मजबूर कर रही है species को move करने में. So countries are forcing species to move to new places by enabling climate change. The second blank है guys, we don't believe humanity can survive this wave unless we make अन्यथा rapid proceeds होता है collections of money, amends, plots, gauge verb है नहीं आ सकता, atone verb है नहीं आ सकता, rapid plot बनाए या amend बनाए. I think the right word is unless we make rapid amends. अगर हम जल्दी इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये और खराब होती जाएगी. Third, the very signs that the world is dashed to reach the moon, Mars and beyond is now telling us that we might have to abandon ship. The very signs that the world is dash, इसके बाद हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, ing फॉर्म. अच्छा, सब में ing फॉर्म है. डॉन्टिंग, किसी को बुरा बोलना नहीं. क्रेविंग, किसी की भूख होना नहीं. हार्टनिंग, दिल खुश कर देना नहीं. स्क्रैपिंग, खुरचना या यूजिंग. स्क्रैपिंग, खुरचना नहीं. आई थिंक यूजिंग इज द बेटर वर्ड. स्क्रैपिंग तो किसी चीज को जो जिसकी कमी होती है उसको खुरचने के लिए बोलते हैं, बट आई थिंक यूजिंग इज द राइट वर्ड. द वर्ल्ड इज यूजिंग टू रीच द मून, मार्स एंड बियॉन्ड इज नाउ टेलिंग अस दैट वी माइट हैव टू अबैंडन शिप इफ वी कीप पॉल्यूटिंग एंड डैश द एनवायरनमेंट. इफ वी कीप पॉल्यूटिंग एंड आउटग्रोइंग, उससे आगे बढ़ जाएंगे. इलस्ट्रेटिंग, नो. वार्पिंग नहीं. अब्यूजिंग या डिप्रेविंग होता है किसी को वंचित रखना या किसी को कमी रहना, लेकिन अब्यूजिंग इज द राइट वर्ड. आई थिंक आप भी सही, आई थिंक यू विल एग्री विद मी. इफ वी कीप पॉल्यूटिंग एंड अब्यूजिंग द एनवायरनमेंट and have leaders who ignore science. Next blank पे चलते हैं guys. One of them is consumerism which dash climate change. जो हम consume करते हैं जिससे climate change क्या होता है, amplifies, misemploys, गलत नौकरी करना, expound, बुरा बोलना, elucidate, clarify करना, clucks तो एक sound होती है नहीं, which amplifies climate change. Definitely guys, के consumerism, one of the factors which influence emissions is consumerism which amplifies climate change. तो amplifies जो बढ़ाता है climate change को और उसको बेकार कर देता है और उसको वर्स कर देता है. And last, it is one of the largest sources of greenhouse gases and these gases will only increase if we as consumers do not make conscious illuminates, ये तो वर्ब है. कॉन्शियस ट्रांजिशन हो सकता था, ट्रांजिटिव तो नहीं हो सकता. ट्रांजिटिव खुद एडजेक्टिव है. कॉन्शियस चॉइसेस, कॉन्शियस रीजनिंग, कॉन्शियस प्रोफेसी तो आगे
वो होता है कॉन्शियस रीजनिंग या कॉन्शियस रैशनल हो सकता है, रीजनिंग तो नहीं, आई थिंक कॉन्शियस चॉइसेस इज द राइट वर्ड, कि हम नहीं बच पाएंगे अगर अन्यथा अगर हम कॉन्शियस चॉइसेस नहीं लेते हैं तो गाइस इस स्पीड से आप पैसेज सॉल्व कर सकते हो अगर आप सही से उसको पढ़ते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हो और उसको अप्लाई करते हो। तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज एंड हाउ टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट। अब ये एक मैं आपको जाने से पहले होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ। इसमें आपको क्या दिया होगा इस हर ब्लैंक के साथ एक वर्ड बोल्ड करके दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या ये वर्ड यहाँ पे ब्लैंक में फिट बैठता है या इसकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट बेटर ऑप्शन है, और इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दिस इज ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर ए, दीज आर द ऑप्शंस फॉर ब्लैंक सी, ब्लैंक बी, ब्लैंक सी, ब्लैंक डी एंड ब्लैंक ई। ये आपका होमवर्क है, आपको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो एक बार, या आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो PDF में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू हैव टू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। अब इनके सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो डोंट फॉरगेट टू join that video। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। और जाने से पहले फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन email at hello@edutap.co.in। So I hope this will help you and this will build up your confidence. So thank you so much once again guys. Happy learning to all of you. Thank you so much and all the very best.